लाइंस अगर फेंकने की। Good morning, everyone. My name is Shivani Tyagi, your current affair teacher, and this is a beautiful morning to start with today's current affair. So again, appreciate yourself that you are here taking my classes, taking current affair classes, and you didn't give up, right? Whatever negative thoughts, whatever bad thoughts were coming in your mind, you passed it out and you're standing here with me. Now, with this thought, with this positive thought, we are going to start with our today's news. Now it says Eurasian Diving Duck in Kaziranga triggers climate change concern. A very important news for prelims and for mains, for both of the concepts. Now let's understand that what exactly this news is telling to us. तो ऐसे imagine करो एक jungle. So imagine a jungle, right? You can imagine it like a jungle classroom, right? And inside this Kaziranga National Park is there. So one day, forest officers and bird experts are like counting birds. ठीक है? Wetland के पास में वो अपने birds count कर रहे हैं, right? So suddenly one student shouts और वो बोलता है that sir, look, that bird is kind of like different, right? So the teacher looks at the bird, right? And through his binocular, he says that this is the rare Eurasian diving duck that is known as Smew. So it usually lives far away in the cold regions of like Europe, right? And everyone is like surprised with this. Why? Because it came like all the way to Kaziranga, right? So to this teacher explains to them that birds migrate based on the climate, on the temperature, and on the basis of food availability. ठीक है? इन बेसिस पर जो हमारे birds हैं वो migrate करते हैं, right? So अगर उनका original home, right? If their original home becomes too cold या फिर too warm या फिर too hot या फिर unsuitable हो जाता है for them to live, right? तो इसलिए वो क्या करते हैं? They shift to new places, है ना? तो यही चीज, so this rare bird like coming to Kaziranga is like a warning signal, right, from the nature. या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि it's like a message that is coming from nature, right? So it tells us that climate patterns जो है हमारे change होने वाले हैं या फिर हो रहे हैं, right? जो wetlands in other regions like those are also those are also degrading, right? So birds are basically changing their migration routes. तो हमेशा जब भी हमारे पास migration का question आएगा, so it means climate is telling us message, nature is telling us message, right? तो इनका जो arrival है, जो इनका duck का arrival है, this is not something to be surprised about. This is not something to be excited about, right? It is a sign if of possible climate change that is going to impact us. ठीक है? But यहाँ पर एक positive sign ये वाली चीज है that Kaziranga wetlands are still healthy, right? वो अभी भी food, shelter, right, safety, right? They are like providing to all these migratory birds. ठीक है? But when we talk about migration, we are going to read about this, that how this migration happened, what are the changes that we are seeing in climate, right? How it is going to impact, the nature also. और उसके साथ साथ में prelims और mains में कैसे questions आ सकते हैं, right? So we can say that it is a like a possible like sign of climate change impact, right? But हमेशा यहाँ पर एक चीज याद रखना कि हमेशा दो साइड होती है, एक पॉजिटिव भी और एक नेगेटिव भी. तो इसकी पॉजिटिव साइड भी लेकर चलेंगे और नेगेटिव भी साइड लेकर चलेंगे. तो क्या न्यूज है? न्यूज ये है कि एक रेयर माइग्रेटरी डक, राइट, called the Smew, has been like spotted in Kaziranga, right? And this is very very important. Why it is important? Because it is rarely seen in India, right? And it normally lives in very cold या फिर northern regions में पाए जाते हैं. But if we are seeing it here, right, so it is basically telling us about the climate change effects. क्या बता रहे हैं ये हमारे बता रहे हैं climate change effects में, right? I hope it is understood. Okay. तो अगर हम अराइवल की बात करते हैं तो दिस स्मू इज बायो इंडिकेटर स्पीशीज. मतलब बायो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? बायो इंडिकेटर मींस these are the species which basically are giving us message, right? A species that tells us about the health of the environment. ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम लोग बायो इंडिकेटर्स, राइट? अगर हम बात करते हैं कि चेंजेस क्या है, एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, तो अगर हम साइंस की बात करते हैं तो दिस मीन्स दैट क्लाइमेट चेंज सिग्नल्स आते हैं, राइट? जो हमारा टेम्परेचर है दैट इज चेंजिंग, राइट? आर्कटिक में हमारा जो एनवायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, राइट? फ्रोजन लेक्स आर फाइनली मेल्टिंग, राइट? उसके साथ साथ में जो हमारा बर्ड्स है, राइट, दे आर ऑल्सो चेंजिंग माइग्रेशन रूट्स, राइट? सो दिस इज द मैसेज दैट दिस माइग्रेशन इज गिविंग टू अस, राइट? अब अगर हम बात करते हैं ये वेटलैंड्स की चेंजिंग कंडीशंस की, दिस चेंजिंग वेटलैंड कंडीशंस, so what we are understanding from this, that flood patterns changing in rivers, right? Wetlands are like appearing and disappearing, right?
So this duck is like a messenger, right? Messenger of climate change. I hope this is understood. The basic is understood. ठीक है, तो क्या बात हो रही है यहाँ पर? बात ये हो रही है कि जो हमारा वेटलैंड कंडीशन है दैट इज गिविंग अस अ मैसेज, राइट? वो हमें बता रहे हैं कि जो हमारा डक, these basically these ducks are seen, right? So these are like a messenger that we are seeing, right? अगर हम बात करते हैं कजीरंगा वेटलैंड इकोसिस्टम की, so what are these? So अगर हम लोकेशन की बात करें, these are located in Assam, right? Wetland ecosystem की बात करें, so what they are telling to us, these are like floodplains, grasslands, right? Wetlands है यहाँ पे, these are water bodies also, right? Global importance की अगर हम बात करें, right? So global importance also, right? Kaziranga is UNESCO World Heritage Site, ठीक है? Central Asia का part है, right? This is a bird like a bird migration route, right? किस लिए जाना जाता है? This is known for one home rhinoceros, elephants के लिए जाना जाता है, tigers के लिए जाना जाता है, and this place is known for like migratory birds also, right? So this is why this place is considered to be very very important, ठीक है? अब now let's move to another thing, Central Asian Flyway. तो Central Asian Flyway क्या है? So अगर हम Central Asian Flyway की बात करें तो ऐसे सोचो कि this sky is like a highway, ठीक है? अब हाईवे क्यों बोला है? हाईवे इसलिए बोला है, हाईवे है ये बर्ड्स के लिए, राइट? So what happens every year? Many birds are like they are traveling like thousands of kilometers, right? अपने cold area से, cold places से they are like traveling to warm places, ठीक है? तो this fixed route that birds follow is known as flyway. मतलब जो वो अपना travel करती हैं, there is a route to it, और उस route को हम लोग बोलते हैं flyway, right? So one such major route is known as Central Asian Flyway, ठीक है? अब ये बात करते हैं कि कहां से कहां तक है, from where to where we are talking about. तो अगर हम इसकी बात करें, so birds using this flyway they travel like from very cold areas, ठीक है? जैसे हमारे पास सेंट्रल एशिया हो गया, आर्कटिक रीजन्स हो गए, राइट? हमारे वो शिफ्ट करते हैं टू वोम एरियाज. वोम एरियाज कौन से हैं? इंडिया हमारे पास में है, साउथ एशिया हमारे पास में है, राइट? सो इन रीजन्स पे वो लोग आते हैं सो दैट दे कैन अडेप्ट टू दिस वोम रीजन्स, ठीक है? नाउ विंटर में these like home regions becomes too cold, right? उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टू सर्वाइव देयर. So they come to India for food, for warm environment, for warm climate, right? अपनी safe wetlands के लिए वो यहाँ पर आते हैं, right? Now flyway में why India is important, why India is considered very important in this case. So wetland of India provides water, fish and plants, right? इन्हीं conditions की वजह से our place India is considered very important for these birds, ठीक है? तो इंडिया इज लाइक व्हाट, लाइक अ विंटर होम, ठीक है? इन लोगों के लिए इट्स लाइक गिविंग देम अ स्पेस, प्लेस टू लिव, राइट? सो इंडिया हैज 27 प्लस इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स ऑन दिस फ्लाईवे. इनमें से हम अगर इंक्लूड करें तो हमारे पास काजीरंगा नेशनल पार्क है, राइट? उसके बाद में हमारे पास चिलिका लेक इज आल्सो देयर. वी हैव डिफरेंट पार्क्स फॉर दिस प्लेसेस, राइट? तो ये जो वेटलैंड्स हैं हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है? हमें वाटर प्रोवाइड करती है, फिश प्रोवाइड करती है, प्लांट्स प्रोवाइड कराती है, राइट? एंड आल्सो इट गिव्स देम रेस्टिंग प्लेस आल्सो, ठीक है? आई होप दिस इज अंडरस्टूड. Now let's move to history कि exactly हुआ क्या, from where this is coming. अब ये वाला कंसेप्ट मतलब ये आया कहां से, हाउ डिड दे ट्रेवल सो फार, ठीक है? अगर हम इनकी बात करते हैं तो अर्लियर पीपल डिड नॉट नो दैट हाउ बर्ड्स ट्रेवल्ड सो सच लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है? अगर हम बात करें इन अर्ली 19th and 20th century, राइट? सो साइंटिस्ट बेसिकली स्टार्टेड, राइट, टैगिंग बर्ड्स, राइट, एंड दे बेसिकली ट्रैकिंग देयर रूट्स. तो देन दे रियलाइज, उन्हें रियलाइज हुआ कि बर्ड्स फॉलो अ फिक्स्ड इंटरनेशनल पैटर्न, ठीक है? वो एक ही रूट को हर साल फॉलो करते हैं, राइट? सो उसके बाद में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनईपी हो गया, राइट, और इंटरनेशनल बर्ड कंजर्वेशन हो गई, राइट, उन्होंने ये कंसेप्ट लिया, ये फ्लाईवे वाला जो कंसेप्ट जो हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा है, ये वाला कंसेप्ट उन्होंने यहाँ से लिया फॉर कंजर्वेशन. दे टुक दिस कंसेप्ट, राइट? तो आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की, राइट, सो इट कवर्स 30 प्लस कंट्रीज इन है. कितनी कंट्रीज? 30 प्लस कंट्रीज, राइट? एंड इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर माइग्रेशन सिस्टम जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है? ओके, अब इसके बाद में हम बात करेंगे वाटर वर्ड सेंसस डेटा, ठीक है? कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, एवरी ईयर इंडिया कंडक्ट्स वाटर बर्ड काउंटिंग इन असम wetlands, ठीक है? More than 1 crore 5 lakh birds like are counted, right? And 107 different species are recorded, ठीक है? और इसमें से हमारे पास में 166 wetlands surveys are there, ठीक है? कितने सर्वेज है हमारे पास में? 166, ठीक है? तो ये किसके द्वारा होता है? दिस इज डन बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बाय लोकल पीपल आल्सो, आर बर्ड वॉचर्स आल्सो, राइट? तो इसे हम बोलते हैं सिटीजन साइंस. Another keyword that you have learned
दैट इज सिटीजन साइंस. सिटीजन साइंस का क्या मतलब होता है? इट मीन्स दैट कॉमन पीपल आल्सो हेल्प इन साइंटिफिक वर्क, राइट? जो हमारे लोकल वर्कर्स हैं, जो हमारे लोकल ऑब्जर्वर्स हैं, they are also taking part in this, right? So they are known as what? They are known as citizens. ठीक है, आई होप दिस पॉइंटर इज क्लियर. ठीक है, अब उसके बाद में विल मूव टू द अनदर पॉइंटर दैट इज, सॉरी, so the another pointer that we are going to understand is environmental problems, कि क्या क्या changes, क्या क्या problems हमें face करने के लिए मिल सकते हैं. ठीक है, concern क्या है हमारा? So यहाँ पर इस न्यूज में एक वार्निंग दी गई है. क्या वार्निंग की दी गई है? That bird habitats are in danger. ठीक है, बर्ड हैबिटेट्स इन डेंजर में कैसे है? सबसे पहला रीजन तो है क्लाइमेट चेंज. क्या क्लाइमेट चेंज? व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, विंटर्स आर बेसिकली चेंजिंग, राइट? टेम्परेचर्स आर राइजिंग बिकॉज ऑफ दिस, राइट? उसके साथ साथ में बर्ड्स गेट कंफ्यूज्ड अबाउट लाइक when to migrate, where to migrate. अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा जैसे कि, right, so this in citizen science also we understood that there was a pattern that these birds were following for a year, right? वो हर साल एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, but now because of this climate change those birds are getting confused, right? उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कब माइग्रेट करना है, कितना माइग्रेट करना है और कहां पर माइग्रेट करना है, right? So another reason is changing flood patterns of Brahmaputra river. तो अगर हम फ्लड्स की बात करते हैं, so those are like more intense now, more unpredictable. ठीक है, so इसी की वजह से जो हमारी wetlands हैं, those are becoming what? Those are damaging, right? So जो हमारे birds का nesting है, right? Those feeding areas, right? So we are losing that, right? उसके बाद में हमारे पास है this wetland damage. Okay, अगर हम बात करते हैं wetland damage की, so what we are discussing here, इसका मतलब जो हमारे wetlands है, they are getting destroyed. क्यों? क्योंकि environment में इतने changes आ रहे हैं. क्यों हो रहा है? क्योंकि environment में हमारे पास इतने सारे changes आ रहे हैं, right? So we are facing lots of problem because of that, right? I hope it is understood. कोई question है यहाँ तक? Okay. After this, what exactly is the another pointer that we have? तीसरा है habitat loss in other countries. ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, so what this pointer is telling to us that if like wetlands in like Siberia, Central Asia, right? अगर वो damage हो जाते हैं, right? If those are damaged, birds cannot even start their journey properly, right? हमारा जो पूरा का पूरा जो migration है, that will be disturbed. ठीक है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट? ओके, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन इंपॉर्टेंस के बारे में. तो पहला तो है वेटलैंड की प्रोटेक्शन. ठीक है, कैसे हो सकती है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, व्हेन रेयर बर्ड्स जैसे कि हमारे पास में स्म्यू इज देयर, राइट? अगर वो काजीरंगा में दिखता है तो इसका मतलब ये है कि इकोसिस्टम इज स्टिल हेल्दी, राइट? वाटर क्वालिटी इज गुड, food chain is working, right? So India is playing an important global role in biodiversity protection, right? अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं, so this is telling about India also कि हमारे यहाँ का environment ठीक है, our environment is okay, right? But अगर हम global environment पे भी talk about, this is changing, global warming is changing, right? So it's not the case कि हमें उस चीज के लिए concern नहीं होना है, because eventually that will affect us also, right? तो इसीलिए it is like a warning that climate change is already affecting nature. ऑलरेडी वो चीज देखने को मिल रही है, सो वी ऑल्सो हैव टू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंटर दैट वी हैव. ठीक है, अब बात करेंगे कि एग्जैक्टली हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्हाट गवर्नमेंट शुड डू एंड व्हाट वी शुड डू. ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि वेटलैंड को प्रोटेक्शन आप दीजिए. ठीक है, स्ट्रिक्ट लॉज बनाइए ताकि हम लोग जो है वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट कर सके, और उसके साथ साथ में जितना भी हमारे पास में इलीगल कंस्ट्रक्शन है, यू हैव टू स्टॉप दैट. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंटर दैट वी हैव. सेकंड पॉइंटर क्या है? हैबिटेट रिस्टोरेशन. हैबिटेट रिस्टोरेशन का मतलब क्या है? दैट क्लीन ऑल द पोल्यूटेड लेक्स. ठीक है, यू हैव टू रिमूव ऑल द इन्वेसिव प्लांट्स. ठीक है, नेचुरल वाटर को आप रिस्टोर करिए, उसका फ्लो रिस्टोर करिए, राइट? आफ्टर दिस द थर्ड पॉइंट दैट वी हैव इज क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लानिंग. ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपका फ्लड मैनेजमेंट, राइट? ब्रह्मपुत्र बेसिन में, जो कि हमने अभी पिछले उसमें यहाँ पे बात करी है, राइट? दैट शुड बी मैनेज प्रॉपरली. ठीक है, उसका फ्लड मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, राइट? एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंटर, प्रोटेक्ट क्लाइमेट सेंसिटिव स्पीशीज एज वेल. ठीक है, तो ये हमारे पास में पॉइंट नंबर 3. व्हेन वी टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली, राइट? हम लोग ग्लोबली बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया में चेंज नहीं हुआ है तो फिर बाकी कंट्रीज में चेंज नहीं होगा. हर जगह एनवायरनमेंट अफेक्ट करेगा, राइट?
So because birds are like crossing countries, तो इंडिया मस्ट वर्क विद अदर कंट्रीज ऑल्सो, ठीक है। हमें माइग्रेटरी जो हमारी स्पीशीज है उनके कन्वेंशन पे फोकस करना चाहिए, ये जो हमारा फ्लाईवे एग्रीमेंट है, ठीक है, उस पर फोकस करना चाहिए, राइट। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। Is there anything, any pointer that you didn't get, you didn't understand? So one question for you quickly in seconds, we'll try to understand this question, ठीक है, और फिर उसके बाद में we'll move to the second news. What this question is telling to us that with reference to wetlands in India, consider the following statement. The first statement that we have is wetlands act as natural water purifiers. Second statement that we have is wetlands help in flood control. Third, wetlands are not important for biodiversity conservation. ठीक है, तो क्या हमारे पास थर्ड सही होगा? नहीं, क्योंकि अभी तो बताया, तो ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ओके, why is it big? B, yes, it is second, 1 and 2, क्योंकि wetlands are natural water purifiers, ठीक है। उसके साथ साथ में फ्लड कंट्रोल में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, राइट। हम लोग wetlands we can strong extra रेन वाटर, ठीक है, हमारी जो फ्लडिंग है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। जो इट्स लाइक ना स्पॉन्ज, ठीक है, स्पॉन्ज लेकर चलो जो फ्लड को स्टोर करके रख सकता है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू another concept of today's, another news of today's. Balancing faith, dignity and constitutional right, very 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 important, ठीक है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होंगे, ठीक है, ये इशू हमें हर बार देखने को मिलता है यूपीएससी में, ठीक है, हर बार, ईच एंड एवरी टाइम, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। बात करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट दिस टॉपिक इज टेलिंग टू अस, व्हाट दिस न्यूज इज टेलिंग टू अस, ठीक है। एग्जांपल लेकर चलेंगे। ओके, इमेजिन करो देयर इज अ क्लासरूम, ठीक है, आपके स्कूल में क्लासरूम है और देयर इज लाइक अ रूल, इस क्लास में एक रूल है that everyone can follow their own beliefs, right? So some students are praying differently, some dresses differently, some celebrate differently, right? वो अपने festivals को अलग अलग तरीके से बनाते हैं, right? So this is known as what? This is known as freedom of religion, ठीक है, इतना तो सबको ही पता है, right? Freedom of religion बोलते हैं इसको, right? So अगर हम बात करते हैं सिचुएशन की, one day a problem arises, ठीक है, एक ग्रुप बोलता है that our religion, right, our tradition says that we should not enter a certain places, right? So to this another group says that we are also equal citizens, we also have dignity and right, ठीक है। So now to this teachers come up, I mean इसका मतलब constitution come up and they decide that should religion be followed, ठीक है, क्या हमारे रिलीजन फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और शुड इक्वालिटी एंड डिग्निटी भी प्रोटेक्टेड, या फिर हमें तीनों ही चीजों पर फोकस करना है, राइट। तो यही जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी हमारे पास में दिस बेसिकली रेज्ड, राइट। अब इस न्यूज में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमें फेथ को बैलेंस करके चलना है, डिग्निटी को बैलेंस करके चलना है, एंड वी हैव टू बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आल्सो, ठीक है। क्योंकि आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया इज वेरी वेरी सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, ठीक है। सेंसिटिव होने के साथ साथ में डाइवर्सिटी इज देयर, ठीक है, वी हैव सो मेनी पीपल फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, पीपल हैव टू मैनेज, ठीक है, टॉलरेंस के साथ साथ में वी हैव टू हैव राइट्स एंड ड्यूटीज, और इन्हीं दोनों के बीच में बैलेंस करके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। अब समझते हैं कि ये न्यूज अभी हमारे पास में क्यों आ रहा है, व्हाट द रीजन दैट वी आर गेटिंग दिस न्यूज, ठीक है। ओके, ओके, अभी इस न्यूज की अगर हम बात करते हैं तो इस न्यूज का जो पूरा मोटिव है वो ये है, द मोटिव ऑफ दिस न्यूज इज दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज रिकंसिडरिंग इट्स 2018 सबरमिला वर्डिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है केरला की, जिन्होंने बेसिकली अलाउ किया था लाइक वुमेन ऑफ ऑल एजेस टू एंटर द सबरमिला टेंपल, राइट। सो दिस इज ओवरटर्निंग अ रूल दैट लाइक बैड वुमेन एज्ड लाइक 10 to 15, राइट, उन्हें अलाउ नहीं किया जाता था उस टेंपल में जाने के लिए, राइट। So now this case raised deep questions, ठीक है, that how far religion practices can be protected, ठीक है। Now we have to maintain here religion also, we have to maintain dignity of women also, we have to maintain equality also, ठीक है, और उसके साथ साथ में we have to talk about constitution also। अब इन सारी ही चीजों में कैसे गवर्नमेंट बैलेंस करके चलेगी, दैट वी हैव टू डिस्कस ओवर हियर, ठीक है। अब नाउ वी नो दैट इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, इक्वालिटी प्रोटेक्टिंग, डिग्निटी इज आल्सो प्रोटेक्टेड देयर, राइट, एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, लाइक एवरी इंडिविजुअल वी आर टॉकिंग अबाउट, सिर्फ कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, एवरी इंडिविजुअल वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। पर कभी कभी समटाइम्स these religious practices, right, they clash with our fundamental rights,
राइट। तो अब अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ में क्लैश हो रहे हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज दैट दे हैव टू बैलेंस बिटवीन दीस टू थिंग्स, राइट। सो वुमेन्स एंट्री इन रिलीजियस प्लेसेस, एलजीबीटी क्यू के जो राइट्स हैं उन पे, राइट, पर्सनल लॉज पर, इक्वालिटी पर, राइट, ड्रेस कोड्स या फिर रिचुअल्स पर, जब भी ऐसे सेंसिटिव इश्यूज उठते हैं, सो द बिग क्वेश्चन अराइजेस। व्हाट इज द बिग क्वेश्चन? द बिग क्वेश्चन इज व्हेन रिलीजन कन्फ्लिक्ट विद इक्वालिटी एंड डिग्निटी, राइट। सो व्हिच वन इज कमिंग फर्स्ट? इक्वालिटी आ रहा है, डिग्निटी आ रहा है, या फिर हमारे पास में रिलीजन आ रहा है? व्हिच वन वी हैव टू प्रेफर, ठीक है। तो वही चीज डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, यूपीएससी के लिए फेवरेट सब्जेक्ट क्या है इसमें पूरा ही। वैसे इफ आई टॉक अबाउट दिस न्यूज, एवरीथिंग इज फेवरेट व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। पहले इस पॉइंटर को डिस्कस करेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इट गिव्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। मतलब कि आप जो है कोई भी अपना रिलीजन चूज कर सकते हैं, राइट। दिस इज आर्टिकल 25 एंड 28 वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हमारे पास में, आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कीजिए, राइट, कोई भी रिचुअल्स आप फॉलो कीजिए, आप रिलीजियस सिचुएशन को आप जैसे मैनेज करना चाहें आप कर सकते हैं, राइट। बट इज दिस फ्रीडम एब्सोल्यूट? क्या ये फ्रीडम एब्सोल्यूट है? नहीं, दिस फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, राइट। इफ वी टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म है, ठीक है, सेक्युलरिज्म ऑफ इंडिया एंड सेक्युलरिज्म ऑफ वेस्टर्न कल्चर, तो इंडिया में और वेस्टर्न में यही डिफरेंस है। व्हेन इट कम्स टू वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, स्टेट का रोल नहीं होता है, राइट, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा सिचुएशन नहीं है, बहुत रेयर केसेस में, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया कैन इंटरवेन, गवर्नमेंट कैन इंटरवेन अगर यहाँ पे हार्मफुल प्रैक्टिसेस हो रही है, या फिर इट इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इट इज लीडिंग टू द वायलेंस, ठीक है। तब यहाँ पे जो कंसेप्ट है दिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दिस कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है, इंडिया में दिस कैन बी इन्वेडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। यही डिफरेंस है इंडियन सेक्युलरिज्म में और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में, व्हिच इज द बेसिक एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में बोलता है आर्टिकल 25 और 28 कि आप कोई भी रिलीजन चूज कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रीडम जो है, ये फ्रीडम, दिस फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट टू अस, राइट। अब बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के रोल की, रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, राइट। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली बैलेंसेस रिलीजन, राइट। कैसे बैलेंस करता है? इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट से, राइट। सो कोर्ट बेसिकली आस्क, इज दिस प्रैक्टिस इसेंशियल टू रिलीजन, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक सोशल कस्टम है, राइट। व्हाट एग्जैक्टली दिस प्रैक्टिस इज, अगर ये इसेंशियल है, इफ दिस इज इसेंशियल ओनली देन विल अलाउ इट, ठीक है। अगर ये एसेंशियल नहीं है देन इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो ये हमें कौन बोलता है? ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट। आई होप इट इज अंडरस्टूड। फिर उसके बाद में हमारे पास में है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट दिस बी पॉइंटर, व्हाट दिस टेल्स अस, दिस मींस दैट वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस आर अबव ट्रेडिशंस, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं? इसमें इंक्लूड करते हैं इक्वालिटी, इसमें इंक्लूड करते हैं लिबर्टी, इसमें इंक्लूड करते हैं डिग्निटी एंड फ्रेटर्निटी, वी आर इंक्लूडिंग हियर, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो हमारी आती हैं, दीज वैल्यूज कम फ्रॉम द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। सो दिस इज द अनदर पॉइंटर दैट वी हैव, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में क्या है? राइट टू डिग्निटी, आर्टिकल 21 वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। राइट टू डिग्निटी की बात करें तो दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट, जो कि हर इंडिविजुअल के पास में होती है, राइट, एंड यू कैन नॉट गो अबव दिस। ह्यूमन डिग्निटी की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस ये वायलेट कर रही है, राइट, सो कोर्ट हैव टू एंड विल स्टॉप इट, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू, दिस पॉइंटर इज अंडरस्टूड। ओके, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं रिलीजन और फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, कि दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल क्या रही है। ओके, रिलीजन वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब इसके बारे में दोबारा से कोर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सिचुएशन क्या है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। इतने सारे रिलीजन्स आर देयर, सो मेनी कस्टम्स आर देयर, सो मेनी वी आर लाइक डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रीजन, कम्युनिटी, राइट, कस्टम्स, वी आर डिवाइडेड इन दैट, ठीक है। हमारे ट्रेडिशंस भी अलग अलग है। सो व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज, आवर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट you are free to follow any religion, right? You have right to equality also, you have right to dignity also, but sometimes what happens, conflicts happen, right? तो अभी का चैलेंज, अभी की सिचुएशन जो है यही है। क्या सिचुएशन है? द सिचुएशन इज बिटवीन रिलीजन वर्सेस जेंडर जस्टिस, ठीक है। किसके बीच में है सिचुएशन? द सिचुएशन, द करंट सिनेरियो इज बिटवीन है
ठीक है, यही सिचुएशन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कभी कभी जब हम रिलीजन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट रिलीजन, दैट हाउ डीपली इट अफेक्ट्स अस, राइट? एक कम्युनिटी which is existing in there, which plays important role in the society, right? How they are excluded for certain practices, और अगर उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो इम्पैक्ट कैसे करता है सोसाइटी पे, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दीज काइंड्स ऑफ न्यूज, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग ऑल द कीवर्ड्स डाउन, ठीक है? चलो, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सबको पता है कि फेयर डिसीजंस की बात होती है, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रीटिंग मेन एंड वुमेन इक्वली, राइट? फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट इनइक्वालिटी, तो वुमेन नॉट अलाउड इन सर्टेन टेम्पल्स, ठीक है? डिफरेंट राइट्स इन मैरिजेस आर देयर, डाइवोर्स डिसीजंस आर देयर, इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो वो भी डिफर करती है चीजें, राइट? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस कंफ्लिक्ट इज बेसिकली हैपनिंग, राइट? रिलीजियस बिलीफ और इक्वालिटी ऑफ वुमेन की अगर हम बात करें, राइट, दिस आर्टिकल 14 एंड 15 इफ वी टॉक अबाउट, ठीक है, तो दिस इज आल्सो टेल्स अस कि कैसे बिलीफ और इक्वालिटी ऑफ वुमेन शुड बी देयर, ठीक है? रिलीजियस बिलीफ और इक्वालिटी शुड बी देयर, ठीक है? जो कि बात किसकी करते हैं, बात करते हैं इक्वालिटी की, ठीक है? ओके, नाउ हम लोग बात कर रहे हैं रिलीजन और इंडिविजुअल फ्रीडम की, ठीक है? जैसे कि हमें पता है दैट एवरी पर्सन हैज द राइट टू लिव लाइक इन द रोड, ठीक है? लेकिन कभी कभी रिलीजियस रिस्ट्रिक्ट्स किस किस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, या तो वो एलजीबीटीक्यू, ठीक है, उसके साथ में विमेन, राइट? उसके साथ में इट्स नॉट दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट ओनली विमेन, समटाइम्स देयर आर प्लेसेस आल्सो वेयर मेन आर आल्सो रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है? सो बट here we are going to talk about religion and women, right? This section of the society, ठीक है? यहाँ पर बात होती है इनके डिफरेंसेस की, राइट? लाइफस्टाइल चॉइसेस की हमें डिफरेंसेस मिलते हैं, राइट? रिलीजन इन चीज को रिस्ट्रिक्ट करता है, राइट? सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजियस रूल्स एंड आवर पर्सनल लिबर्टी आल्सो, ठीक है? कि इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट चूजिंग एनी right, if they are talking about choosing any religion, then why this religion is not adapting that, why this religion is not taking that concept, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं this political use of religion की, तो religion is sometimes used in politics also, ठीक है? कैसे यूज होता है, हमारे पास में वोट बैंक्स में यूज होता है, ठीक है? जो हमारी वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है दैट, उसके साथ साथ में आइडेंटिटी मोबिलाइजेशंस, इसका मतलब क्या है, पीपल आर बेसिकली डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन बेसिस ऑफ कम्युनिटी, ठीक है? उनके बेसिस पर जब हमें डिवीजन मिलता है, दैट इज नोन एज आइडेंटिटी मोबिलाइजेशन, ठीक है? उसके बाद में हमारे पास है सोशल पोलराइजेशन। सोशल पोलराइजेशन का मतलब क्या है, सोशल पोलराइजेशन इज बिकॉज ऑफ रिलीजन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, राइट? कम्युनल टेंशन को इंक्रीज किया जाता है, राइट? यू आर इंक्रीजिंग कम्युनल टेंशन बिटवीन ग्रुप्स, राइट? सोसाइटी इज बेसिकली डिवाइडेड इन हेयर, है ना? तो इसकी वजह से क्या होगा, दिस विल वीक आवर नेशनल यूनिटी। क्या वीक करेगा ये, नेशनल यूनिटी वीक करेगा, ठीक है? आई होप ऑल द कीवर्ड्स दैट आई एम टेलिंग यू, यू आर राइटिंग इट डाउन, ठीक है? ओके, सोशल पोलराइजेशन समझ में आ गया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस वे फॉरवर्ड, कि आगे क्या बात हो रही है, द सॉल्यूशन इज नॉट टू रिमूव रिलीजन, बट यू हैव टू बैलेंस इट विद द राइट्स, ठीक है? तो पहले क्या करना है, पहले तो यू हैव टू रिस्पेक्ट फेथ, religion is part of identity, culture, tradition. So first, what is the first step that we have? The first step is respect faith, ठीक है? सबकी आइडेंटिटी को आपको एक्सेप्ट करना है, as Jainism says, what Jainism talks about, what Anekantvad, what Anekantvad says, that you have to explain, you have to basically adapt, new identification, new thinking, right? तो यही चीज आपको जो है अडेप्ट करनी है when it comes to religion also, ठीक है? उसके बाद में प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स also, ठीक है? आपको बेसिकली डिफरेंस नहीं क्रिएट करना है ना? आपको बेसिकली किसी की डिग्निटी पर, राइट टू लाइफ पर, राइट टू डिग्निटी पर क्वेश्चन नहीं करना है, बिकॉज दैट गोज अगेंस्ट व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, राइट? आफ्टर दिस वी हैव थर्ड, फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. This is very important. Why? It means that constitution is above our customs and above traditions also, right? And this idea is what is strongly used by courts in many cases. और इस केस में भी, this Kerala case, this temple case is also basically using this constitutional morality, ठीक है? उसके बाद में encourage social reforms, मतलब आपको जो है फोकस करना है on ending discrimination, on giving equal rights, okay? Do not discriminate on the basis of gender. सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स आप चलाइए, राइट? एंड हमने देखा भी है कि जो हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है, दे हैव लाइक इम्प्रूव्ड थिंग्स हिस्टोरिकली, राइट? उन्होंने सोसाइटी को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया. आफ्टर दिस फोकस ऑन डिग्निटी, राइट टू लाइफ, राइट? आर्टिकल 21 व्हाट इट टॉक्स अबाउट, ठीक है? आई होप द न्यूज़ इज अंडरस्टूड. Is there anything that you didn't get, you didn't understand? चलो
अब आगे की अगर हम कंसेप्ट की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो जो आगे की न्यूज होगी, दिस न्यूज विल बी कनेक्टिंग दिस वन कीवर्ड, ठीक है। सो फर्स्ट विल बी अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन स्मगलिंग, राइट, एंड देन विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन क्लास 8 एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। इस चीज को हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं विद द कंसेप्ट दैट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। ओके, जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, व्हाट इट इज, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा सिर्फ रूल्स के लिए नहीं है, राइट। सो दिस इज नॉट ओनली अबाउट रूल्स। अभी पिछली ही स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, राइट, बट व्हाट दिस कंसेप्ट इज टॉकिंग टू अस, दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट फॉर रूल्स, राइट। इसका मतलब ये है दैट वी आर बेसिकली वर्किंग टुवर्ड्स व्हाट, टू ब्रिंग द चेंजेस इन द सोसाइटी, ठीक है। एंड वी आर ब्रिंगिंग दीज चेंजेस, व्हाई, हम क्यों लेकर आना चाहते हैं चेंजेस, बिकॉज फॉर बेटर लाइफ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली शुड ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, दिस इज द कंसेप्ट दैट इट टॉक्स अबाउट, ठीक है। अब चलते हैं अपनी न्यूज की तरफ। आई होप द वर्ड इज अंडरस्टूड टू यू कि ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज नॉट ओनली अबाउट रूल्स, मतलब रूल्स पर नहीं, इंप्लीमेंटेशन पर वहां पर फोकस हो रहा है, राइट। व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन, वी आर फोकसिंग ऑन इंप्लीमेंटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए गए, रूल्स बना दिया गया, राइट, कोई चीज इंप्लीमेंट हो नहीं रही है, राइट टू लाइफ कोई मान नहीं रहा है, राइट टू डिग्निटी कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा है, राइट। वी आर नॉट बैलेंसिंग बिटवीन व्हाट, वी आर नॉट बैलेंसिंग बिटवीन आवर राइट्स एंड आवर ड्यूटी, ठीक है। सो चेंजेस आर नॉट सीन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बात करता है कि रूल्स आर नॉट ओनली देयर कि आपने बना दिया और आपको फॉर्म कराने, नहीं, वी हैव टू ब्रिंग द चेंजेस सो दैट वी कैन हैव व्हाट, वी कैन हैव बेटर लाइफ। ये सिंपल सा आइडिया है, और इसी आइडिया के साथ में वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस न्यूज, दीज टू न्यूज टुगेदर, ठीक है। पहले ह्यूमन स्मगलिंग के बारे में बात करेंगे, दैट व्हाट दिस ह्यूमन स्मगलिंग इज, ओके। When we talk about this concept human smuggling, तो human smuggling is like exploitation of poor, ठीक है। modern slavery की यहाँ पर बात हो रही है, right? So human dignity is destroyed, right? So transformative constitutionalism क्या बोलता है, that state must end exploitation, right? हमें जो हमारे vulnerable groups है, these vulnerable people should be basically saved, right? We have to create safe, and we have to create what, we have to create a just society. What is just society? Where we are treated equally, where we are treated fairly, right? So this transformative society into a humane and safe society should be there, ठीक है। I hope ये वाला concept, transformative constitution वाला concept, इसमें समझ में आ गया हो that how you have to put it. Is this understood? ओके, इस न्यूज को दो पार्ट में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे ह्यूमन स्मगलिंग इशू में, राइट, बेसिकली व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग टू दिस। तो न्यूज क्या है, न्यूज ये है, ये बोल रही है कि ह्यूमन स्मगलिंग जो है हमारा एक बहुत ज्यादा सीरियस इशू है, राइट, एंड इंडिया शुड लाइक मेक अ स्ट्रॉन्ग लॉ अगेंस्ट ह्यूमन स्मगलिंग, राइट। और जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, दे शुड मेक द चेंजेस, they should do something about this. Why? Because numbers of these smuggling cases are increasing day by day, ठीक है। और उसके साथ साथ में बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट दिस इज अबाउट। तो इमेजिन अ ग्रुप ऑफ criminals, right, who are promising to a people that we will take you to another country for a better job, ठीक है। उसके साथ साथ में तुम्हें पैसा भी मिलेगा, बट what actually happens, they take money, right, और उसके साथ में क्या करते हैं, इलीगली भेज देते हैं या तो फिर उनको, है ना, and they work there like slaves, right, and after them they are like left there, right, during their travel, या फिर उन्हें बीच रास्ते में कहीं छोड़ दिया जाता है after taking money from there, right. So this is a illegal business that is known as what, human smuggling, ठीक है। there is a difference between trafficking and this human smuggling, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन स्मगलिंग की, ह्यूमन स्मगलिंग क्या होता है, ह्यूमन स्मगलिंग का मतलब होता है कि आप लोग जो है इलीगल ट्रांसपोर्ट करा रहे हो बॉर्डर्स पर, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है दैट यू आर यूजिंग फोर्स इन हैंड, ठीक है। आप किस लिए कर रहे हो, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, स्लेवरी कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो, राइट, सो दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रैफिकिंग। लेकिन स्मगलिंग की बात करें तो आप क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट देम, यू आर ट्राइंग टू चीट देम, राइट, सो दैट्स स्मगलिंग, ठीक है। झांसा देकर आप किसी को स्मगल कर रहे हो, राइट। दोनों, राइट, बोथ ओवरलैप अ लॉट। व्हाई? क्योंकि दोनों के बीच में जो है
चीजें सेम है, दैट इज व्हाट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, आई होप बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ओके। अभी ये जो इशू है इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो बहुत सारे रीजंस हमारे पास में। ठीक है, अगर हम रीजंस की बात करते हैं, ओके, ये ह्यूमन स्मगलिंग की अगर हम रीजंस की बात करते हैं, तो ये इशू इंक्रीज क्यों हो रहा है इतना इंडिया में, तो पहला रीजन तो है कि पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो पीपल वांट टू गो अब्रॉड फॉर जॉब्स, इसीलिए लोग मैनिपुलेट भी बहुत इजीली हो जाते हैं, राइट? व्हाई? बिकॉज़ दे वांट टू हैव बेटर लाइफ, राइट? फर्स्ट रीजन इज व्हाट? द फर्स्ट रीजन इज बेटर लाइफ, जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? फिर उसके बाद में इलीगल माइग्रेशन नेटवर्क्स, ठीक है, एजेंट्स, गैंग्स, राइट? जो हमारे पास में एजेंट्स और गैंग्स है, दे आर लाइक स्प्रेड एवरीवेयर, दे आर स्प्रेड लाइक अक्रॉस द कंट्रीज। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पहले भी डिस्कस की है, दैट इज वीक मैनेजमेंट, वीक बॉर्डर मैनेजमेंट। ठीक है, कुछ कुछ एरियाज में इतनी वीक मैनेजमेंट है कि इट इज वेरी इजी टू स्मगल ह्यूमन बीइंग्स, राइट? ग्लोबल माइग्रेशन प्रेशर की अगर हम बात करें, व्हाट इट टॉक्स अबाउट, रेफ्यूजीज की अगर हम बात करें, कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, सो दीज आर द आल्सो रीजंस दैट व्हाई दीज स्मगलिंग केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, अगर इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया बेसिकली इज फेसिंग इलीगल इमिग्रेशन कंसर्न्स। ठीक है, तो दिल्ली में जैसे हो गया, गुजरात में हो गया, राइट, जहां पे इलीगल माइग्रेंट जो है, दे स्मगल नेटवर्क्स एंड दे हैव बीन फाउंड। ठीक है, तो इंडिया बेसिकली इज वर्किंग टुवर्ड्स इट, इंडिया इज बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशन टुवर्ड्स इट। ठीक है, तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए भी गए हैं इंडिया की तरफ से, है ना? अब ये आज के टाइम पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? ये बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि यहाँ पे तीन मेजर कंसर्न्स उठकर आते हैं। पहला मेजर तो है नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, राइट? यू आर टेकिंग आवर रिसोर्सेज फ्रॉम हेयर टू देयर। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है यहाँ पर, है ना? वी आर ट्रीटिंग ह्यूमंस एज व्हाट? एज जस्ट नो रिसोर्सेज। तीसरी चीज क्या है? वायलेशन, माइग्रेशन प्रेशर इज हैपनिंग ओवर देयर। ठीक है, दिस इलीगल माइग्रेशन प्रेशर इज हैपनिंग, राइट? ओके, अब इसमें अगर हम बात कर ले पार्लियामेंट के रोल की, तो इंडिया में व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग और पार्लियामेंट के रोल में क्या है, तो because only parliament can make a strong national law, right? So according to this news, what exactly we are talking about, India को basically बहुत जरूरत है एक dedicated human smuggling law की, right? So what we are basically asking for, human smuggling law की यहाँ पर बात हो रही है, and basically in this news it is asked कि जितना ज्यादा जल्दी हो सके ये लॉ जो है ये पास हो जाना चाहिए, राइट? सो व्हाट दिस न्यूज इज टेलिंग टू अस कि पार्लियामेंट को करना क्या चाहिए, पहले तो स्ट्रिक्ट लॉज बनाइए, राइट? इंप्रूव करिए अपनी जो हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट है उसको, राइट? इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, राइट? चौथी चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट है, विक्टिम को प्रोटेक्ट करिए, राइट? सो देयर इज अ लीगल गैप दैट इज हैपनिंग इन इंडिया, राइट? सो इंडिया डज नॉट हैव वन सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, राइट, जो ह्यूमन स्मगलिंग को बेसिकली डिफाइन कर सके। ठीक है, तो एक सेपरेट लॉ जो है फॉर ह्यूमन स्मगलिंग शुड लाइक एग्जिस्ट, दिस इज व्हाट दिस न्यूज इज आस्किंग, राइट? अगर हम बात करते हैं तो अभी के टाइम पर हम जो है सिर्फ आईपीसी सेक्शन यूज करते हैं, हम जो है पासपोर्ट एक्ट यूज करते हैं, एंड वी आर यूजिंग फॉरेनर एक्ट्स ओनली, राइट? सो इंस्टेड ऑफ लाइक दिस वी शुड हैव दिस ह्यूमन स्मगलिंग लॉ। ठीक है, अभी जो है हमने बात करी है, सो दीज आर नॉट इनफ, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इंटरनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क्स की, राइट? व्हाई? बिकॉज दे आर लाइक स्प्रेडिंग अ लॉट, इसीलिए वहां पे मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज दैट वी हैव। आई होप यू हैव कनेक्टेड द वर्ड प्रॉपर्ली। Okay, now coming to the next news, that is changing in class NCERT book, very important चीज। ठीक है, क्यों है important? Because इतने सारे changes, ठीक है, we are talking about youth है, we are talking about future है, right? So NCERT love these kinds of questions also. तो याद रखना कि क्या क्या changes हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव कंसर्न्स क्या है, नेगेटिव क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस चीज से, वो सारी डिस्कस करते हैं। चलो, इमेजिन आपको सडनली बोल दिया जाए कि आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे, यू आर लाइक अबाउट टू चेंज। ठीक है, व्हाई? क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो है बहुत लेंथी हो रही थी, सो नाउ व्हाट गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग, चलो कुछ चीजें चेंज कर देते हैं, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन, so it is basically shaping that how children thinks, right? When are like they know about the history, है ना? And how they see difference between equality and justice. And if education promotes equality, teaches real history, right, builds critical thinking, right, it helps transform future decisions, right? लेकिन अगर यही चीज हम लोग करते हैं कि इनइक्वालिटी को हम लोग हाइड कर देते हैं, हम लोग मार्जिनलाइज वॉइस को छुपा देते हैं, उनकी आवाज कम कर देते हैं, राइट? तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट, दिस बिकम्स वीक। सो दिस इशू इज ऑल्सो अबाउट हाउ एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी। ठीक है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है when we talk about education, when we talk about school books, when we talk about youth, transformation history में, transformation society में, right?
अगर हम बुक्स की बात करें, इफ बुक्स बेसिकली रिमूव डिस्कशन ऑफ कास्ट इनजस्टिस, ठीक है, मार्जिनलाइज वॉइस की आवाज को बेसिकली ढंग से बता नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, राइट, दैट हैव बीन लाइक डिक्रीज्ड, राइट। तो अगर हम यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें, जो कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा था, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो इट इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली लॉज टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, बल्कि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा जरूरत है टू बेसिकली हेल्प यूथ चेंज द सोसाइटी ऑल्सो, राइट। एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है दैट इज गोइंग टू बिल्ड अवेयरनेस अबाउट इक्वालिटी, राइट, अबाउट हिस्ट्री, अबाउट सोशल जस्टिस, ताकि हमारे फ्यूचर सिटीजन्स को पता चल सके दैट व्हाट चेंजेस दे हैव टू ब्रिंग इन द सोसाइटी, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव कनेक्टेड दैट वर्ड विद दिस न्यूज. Okay, what exactly this news is? So the news is that there are like changes that are like going to be come in NCERT books, class 8 NCERT books, right? There are going to be changes, revisions in these things, right? Especially class 8 की तो social science की NCERT होगी उसमें, ठीक है? क्या changes है? That there will be like removal of some historical topics. कौन-कौन से topics हम लोग remove करने वाले हैं? So we are going to remove, Mughal history और कुछ-कुछ rulers को हम लोग remove करने वाले हैं, right? So these are going to be removed from class 8 history books, right? जैसे कि हमारा जो मुगल्स की डिटेल्स हैं, we are going to remove them. Discussions जो हमारा है, जो हमारे past conflicts हुए हैं, policies जो हुई हैं, we are going to remove them also, right? So this idea is given by whom? By NCERT, right? जो हमारा कंटेंट है उसको शॉर्ट कर दिया जाएगा, जो भी irrelevant और repetitive कंटेंट है उसको बेसिकली हटा दिए जाएंगे, right? So there will be like changes in chapters on society also, जैसे कि कास्ट हो गया, मार्जिनलाइजेशन हो गया, इन सारी चीजों पर भी हम लोग जो है कंटेंट रिमूव कर रहे हैं इन एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। जो क्लास 8 की सिविक्स है, यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो बुक है, राइट, सो देयर इज अ लाइन व्हिच इज एक्सप्लेनिंग द वर्ड दलित, राइट, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको हटा दिया गया है, राइट। सो सम बेसिकली केस स्टडीज ऑफ लाइक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, वो भी केस स्टडीज जो है वो रिड्यूस कर दी गई है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में बहुत कम डिस्कशन होगा ऑफ दी सोशल इनइक्वालिटीज, राइट। अब जो हमारी आने वाली नई बुक्स होंगी, राइट, उनमें हमारे पास में इन डिस्कशन का विल नॉट हैव मच एंड मोर कंटेंट सो दैट वी कैन डिलीवर टू दिस यूथ, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड कि क्या क्या चेंजेस बेसिकली एनसीईआरटी लेकर आने वाली है। ओके, इतना ही नहीं, इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे चेंजेस हैं। तो एक चेंजेस और है, दैट इज बेसिकली पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल रेफरेंसेस आल्सो, ठीक है। सो अक्रॉस एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है, सिर्फ क्लास 8 की बात नहीं हो रही है, अक्रॉस एनसीईआरटी बुक्स some references, right, of emergency 1975 वाले जो इमरजेंसी हुआ था, सोशल मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स आर आल्सो देयर, तो उन्हें या तो थोड़ा सा कम कर दिया गया है या फिर उन्हें हटा दिया गया है, राइट। तो एम क्या है? एम बेसिकली जो एनसीईआरटी है वो ये बोल रहा है कि हमें सिलेबस का जो लोड है वो थोड़ा सा कम करना है, राइट, एंड वी वांट सम सिंप्लीफाई कंटेंट, सो दिस इज व्हाई वी आर रिड्यूसिंग द कंटेंट, ठीक है। सो देयर विल बी लाइक न्यू फोकस ऑन रिवाइज्ड बुक्स आल्सो। सो 2025 में जो हमारे पास में नई बुक्स आने वाली हैं, राइट, so we are going to add knowledge system also, हम लोग इंडियन साइंटिस्ट मैथमेटिशियन के कंट्रीब्यूशन को ऐड करने वाले हैं, राइट। we are going to make our content more story like and simplified, right. For example, if we talk about math books, right, so we are going to include Ramanujan books, Ramanujan stories also, right, and number 1729, so we are going to make it more easy for people to understand, right. तो यहाँ पर बेसिकली थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बात होगी, ठीक है। क्या क्रिटिसिज्म होगा? पहले तो हम लोग सेलेक्टेड हिस्ट्री दे रहे हैं, राइट, हम लोग जो है पूरी हिस्ट्री बता ही नहीं रही है। अगर पूरी हिस्ट्री नहीं पता चलेगी तो क्रिटिसिज्म नहीं होगा, क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो रेवोल्यूशन नहीं होगा, रेवोल्यूशन नहीं होगा तो चेंजेस नहीं आएंगे, चेंजेस नहीं आएंगे तो विल बी स्टक इन द स्टूडियो 25 only, राइट। सो दिस इज द क्रिटिसिज्म दैट वी आर बेसिकली फेसिंग इन हियर। I hope the news is understood. So this is it for today. I will see you tomorrow at the same timing. Thank you so much.